Morning student, this is the class 9 subject social science, and student, today we are going to start new chapter number 3 of geography, and the topic is drainage. Drainage means the river system of an area, and this is the lecture first. Student, this chapter we will cover in 6th to 7th lecture. And student, firstly we will recall previous chapter, and previous chapter we have discussed about 6 major divisions such as the Himalaya mountain, Northern Plain, Peninsula Plateau, Coastal Plains, Indian Desert and the Islands. And student, this chapter is based on river system, and you know some rivers flow from north to south, and some rivers flow from east to west and west to east. Some rivers originate from Himalayas such as Indus and Brahmaputra. Okay, and the northern plain have formed from 3 river systems such as Indus, Brahmaputra and Ganga. So student, in this chapter we will learn about the river system of India. So let's start. And today we will discuss about drainage means the meaning of drainage. Drainage means the river system and the drainage system of India. In India we have 2 drainage systems such as Himalaya river and the Peninsula river. And last, drainage pattern means the pattern in which the river flow. Okay, so let's start our first topic, drainage. Drainage means the river system of an area is called drainage. Drainage basin, the area drained by a single river along with its tributaries and distributaries is called drainage basin. Student, drainage यानी एक एरिया के रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज. और ड्रेनेज बेसिन आपको पता है घाटी, यानी कि एक एरिया जो है जिसमें क्या है, सिंगल रिवर है, जैसे यानी कि गंगा रिवर है या इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, उनके साथ जो उनके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूट के साथ जो एरिया क्या है कवर किया जाता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. मीन्स द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर ओनली वन रिवर नहीं, इसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूट के साथ जो एरिया ड्रेन किया जाता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. वाटर डिवाइड, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट 2 ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. मीन्स व्हेन an upland area या height area या mountain area separate river into 2 drainage basin is called water divide. And Amazon river is the world largest drainage basin and the Ganga is the largest basin in India. Okay student, जैसे कि आप देखो कोई रिवर फ्लो कर रही है प्लेन में, और जैसे उनके बीच में कोई अपलैंड एरिया आता है या माउंटेन एरिया आता है तो वो माउंटेन जो पार्ट है वो रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. एक कुछ रिवर्स ईस्ट की साइड फ्लो करती हैं, कुछ साइड वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं. तो उस माउंटेन्स या उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड. एंड अमेजोन रिवर है जो है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है, और इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है वो गंगा. ओके, गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, देखिए यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं वाटर डिवाइड. इसमें क्या है, इसने वाटर डिवाइड में क्या है, इसमें जो रिवर्स है उसने क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ये वाली जो यहाँ जैसे ये माउंटेन है या अपलैंड एरिया है, इसने क्या किया, रिवर प्लेन एरिया फ्लो कर रही थी और यहाँ पे माउंटेन आने की वजह से ये जो रिवर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी. कुछ रिवर्स ए की साइड ईस्ट की साइड फ्लो करते हैं, कुछ रिवर वेस्ट के साइड फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड. नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. एंड द स्टूडेंट, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स. एंड द स्टूडेंट, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द कंटिनेंट. एंड इन इंडिया we have 2 major groups of Indian rivers such as Himalaya rivers originate from Himalaya, and other is Peninsula river and originate from Peninsula Plateau. You know
Himalaya river, some river flow from north to south and some river flow from to east to west and west to east. And you know, Peninsula Plateau divided into two parts, Central Highland and Deccan Plateau, and the Narmada and Tapi flow from west, okay, and drain into Arabian Sea, and the Godavari, Krishna, Kaveri originate from Western Ghat and drain into Bay of Bengal. स्टूडेंट, ड्रेनेज सिस्टम हमारे इंडिया में 2 ड्रेनेज सिस्टम है. हिमालय यानी कि माउंटेन में से जो रिवर फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं हिमालय रिवर. उसमें जो मेन रिवर आती है हिमालय रिवर्स में आती है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. और जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर जो रिवर आपकी क्या होती हैं, जो आपके पेनिनसुलर प्लेटू में से ओरिजिन होती हैं, जैसे कि आपकी नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर. देखिए स्टूडेंट, फर्स्टली यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज कवर्ड बाय माउंटेन. ओके, यहाँ से जो आपकी हैं, यहाँ पे 3 रिवर्स हैं. यहाँ पे जो आपकी इंडस रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे झेलम, चेनाब, राबी है. और आपको बताया भी था कि ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन, इस वाले एरिया को बोलते हैं गंगा प्लेन. यहाँ से जो रिवर से गंगा होती है, ऑरिजिन करती है, और यहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है. और ये आपका ये वाला जो एरिया असम और अरुणाचल प्रदेश का ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये जो सारी हम जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है, हिमालय रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. और ये वाला जो आपका सेंट्रल जो पार्ट है, यानी मिडल पार्ट ऑफ द country is covered by Peninsula Plateau, and some river originate from Central Highland and some rivers originate from Western Ghats, such as Narmada and Tapi flow from west and drain into Arabian Sea, and some river originate from Western Ghat, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. आपको पहले ही बताया था कि आपका यहाँ सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा से अपर पार्ट जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड, और ये आपकी क्या होती हैं, अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं और रिफ्ट वैली बनाती हैं. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें जो ये पेनिनसुलर जो रिवर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी हैं, जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज हो जाती हैं. अब स्टूडेंट देखिए बेटा, अब जो रिवर्स हैं, जो ये वाली जो रिवर्स हैं, हिमालय रिवर, ये क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है. साउथ से नॉर्थ की तरफ तो नहीं जाएंगी ना, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो रिवर्स फ्लो करती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आने में इनको क्या होता है, एक तो डिस्टेंस काफ़ी लगता है, और ये जो रिवर्स हैं ये अपने साथ क्या होती हैं, सैंड और सिल्ट भी फ्लो करती हैं. सैंड और सिल्ट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे गंगा जो यहाँ जो गंगा प्लेन एरिया है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया है, वो एरिया क्या होता है, फर्टाइल होता है. इसी वजह से जो हिमालय जो रिवर्स हैं वो अपने साथ सैंड और सिल्ट लेके आती है, और वहाँ जो एरिया वहाँ पे जब इनका डिपोजिशन हो जाता है, वहाँ वो एरिया होता है फर्टाइल लैंड. तो ये वाला जो हिमालय रिवर्स की वजह से एरिया फर्टाइल होता है, और ये वाला जो यहाँ पे है इसको पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें जो रिवर है ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट की ईस्ट की तरफ क्या होती है, फ्लो करती है. फर्स्ट, द हिमालय रिवर. दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द lofty mountain. Means these rivers receive water from rainfall and the snow and melted snow from glacier from the lofty mountain. And you know Himadri mountain covered by glacier, and Himalaya river get water from rain and as well as melted snow from the lofty mountain, means the highest peak of the mountain. And these river are perennial means they flow throughout the year, जिसमें क्या होता है, पूरे 12 के 12 महीने क्या था, पानी रहता है, 12 महीने बहती रहती हैं. जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर है जो हमेशा 12 महीने जो क्या होती हैं, बहती रहती है, कभी उनमें पानी खत्म नहीं होता. एंड दीज रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी, एंड हिमालय रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे कवर लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम द सी. मीन्स ये जहाँ इनका ओरिजिन होता है, यानी जहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सी तक ड्रेनेज होने तक इनको क्या है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस क्या है, कवर करना पड़ता है. और हिमालय रिवर से पेरेनियल है, क्योंकि इनमें हमेशा पानी क्या 12 महीने पानी रहता है. और जो हिमालय रिवर से पानी जो है वो एक तो बारिश की वजह से इनमें इकट्ठा होता है, और जो ग्लेशियर हैं हिमाद्री जो पार्ट है वो हमेशा ग्लेशियर से क्या रहता है,
ढका रहता है। और इस हिसाब से जो ग्लेशियर जो पिघलते हैं तो जो पानी है वो क्या होता है आपका हिमालय में से जो रिवर निकलते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें उनके थ्रू क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन में एंटर कर जाता है, तो इनको बोलते हैं हिमालय रिवर। एंड दीज रिवर्स आर एंगेज्ड इन हाई इरोजन एक्टिविटी, मीन्स व्हेन रिवर फ्लो फ्रॉम north to south and they are engaged in high erosion activity, means they carry load of sand and silt, okay, and the rocks divided into different sediments, and these river are useful in irrigation, and in the middle and lower courses river from meanders oxbow lake also. Friend, एक तो जो हिमालयस रिवर्स हैं वो इरोजन एक्टिविटी यानी उसके सब इरोजन यानी सॉइल इरोजन होता है, यानी कि इरोजन एक्टिविटी करती रहती है कि जैसे जैसे माउंट रिवर्स करती हैं तो रिवर्स के लगातार फ्लो होने की वजह से जो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं उनके सेंडिमेंट्स होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो सेंडिमेंट्स है वो रिवर के साथ ही क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन में एंट्री हो जाती है। तो ये अपने साथ माउंटेन्स को काटती हुई क्या नीचे की तरफ आती हैं, और ये अपने साथ बहुत सारा सैंड और सिल्ट भी फ्लो करके लेके आती हैं। और जब ये सैंड और सिल्ट जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। जैसे आपने देखा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और जो ये जो हिमालय रिवर से जो आने वाला जो पानी है उसको फिर क्या है इरीगेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन में गंगा रिवर्स का जो पानी है बहुत ज़्यादा क्या है यूज़फुल है इरीगेशन के लिए, तो इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया क्या है फर्टाइल है। एंड द मिडल कोर्स and the middle and lower course river from meanders and meanders means a curve of a river, and oxbow lake it is a U-shaped valley. Okay, so firstly you see the picture and you know river originate from Himalaya and they cover long distance, and in the middle and lower course they formed meanders means ये कट जो है आपके जो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसमें जो कट्स बने हुए हैं मेंडर्स वो बोलते हैं मेंडर्स, यानी कि नदियों के से द्वारा जो ये कट बनाए जाते हैं यानी कि मूवमेंट्स जो की आती है मूवमेंट्स ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड मेंडर्स, इनको बोलते हैं मेंडर्स। और जैसे जैसे ये क्या आता है आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है तो वैसे ये क्या बनाता है उसमें से क्या होती हैं कई बार जो क्या है यू शेप्ड वैलीज़ जो हैं ये क्या करती है मेन रिवर से अपनी इसमें मेन रिवर से कुछ पार्ट क्या होता है अलग स्ट्रीम क्या होती है अलग हो जाती हैं, और इनकी जो शेप तो यू शेप होती है तो इनको बोला जाता है ऑक्सबो लेक कहा जाता है, और ये सेपरेट बॉडी बन जाती है इसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। और जैसे से रिवर्स क्या आती हैं ड्रेन होती हैं, ड्रेन होने से पहले जब वो क्या बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पे क्या होते हैं डेल्टा बनाती हैं, ये ट्रायंगल शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे जो एरिया डेल्टा एरिया में जो भी सैंड और सिल्ट होते हैं वो एरिया क्या होता है फर्टाइल होता है। तो स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं मेंडर्स और इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एंड द इंडस Ganga and the Brahmaputra are the main rivers, and the two major Himalaya river, the Indus and the Brahmaputra, originate from north to the mountain ranges. Student, Himalaya rivers are mainly Indus, Ganga and the Brahmaputra are the main rivers, and the two major Himalaya rivers such as Indus and Brahmaputra originate from north to the mountain range. आपने देखा था कि इंडस जो रिवर है वो भी क्या होती है आपकी माउंटेन रेंज से निकलती हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर्स भी। तो हिमालय रिवर्स की जो मेन रिवर है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड के आपके क्या है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। तो दीज आर द फीचर ऑफ हिमालय रिवर। नेक्स्ट देखिए ये क्या है गॉर्ज, ये क्या है माउंटेन्स है। माउंटेन्स में से जो रिवर्स है ये क्या है माउंटेन्स हैं, और माउंटेन में से क्या है क्रॉस करती हुई क्या बनाती है जो रिवर है वो गार्ज बनाती हुई आती है, यानी काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर किया आती हैं, और जब ये माउंटेन्स को क्रॉस करती हैं तो ये क्या बनाती हैं गार्ज, यानी माउंटेन्स को काटती हुई जो रिवर्स क्या करती हैं अपर कोर्स से यानी लोअर कोर्स में आती हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, तो माउंटेन्स को जो कट करती है उस वाले पार्ट को बोलते हैं गार्ज। An oxbow lake, it is a U-shaped body of water that forms when a wide meander from the main stream of a river is cut off, creating a freestanding body of water. You know, oxbow lake इसकी जो शेप होती है बेटा U-shaped होती है,
और ये क्या करती है, जब मेन स्ट्रीम से जो वाइड मेंडर है, यानी कि जो मेन जो आपका जो कर्व होती हैं रिवर, जो कर्व है, जब वो मेन स्ट्रीम से जो मेन जो रिवर से वो क्या करती हैं, अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद वो क्या बनाती है, अपनी एक स्टैंडिंग बॉडी बनाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एंड मेंडर्स ए वाइंडिंग कर्व मीन्स ए कर्व ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड ए मेंडर, ए बैंड ऑफ ए रिवर। जब रिवर्स क्या होती है, मूवमेंट होती हैं, जैसे आपने देखा ना स्नेक की तरह मेंडर्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब रिवर आपके हिमालय माउंटेन से जब फ्लो करती हैं तो उनकी शेप क्या होती है, वो काफ़ी जो माउंटेन को क्रॉस करती हुई नीचे आती है, तो उनकी जो शेप बन जाती है, उस शेप में से उनको बोलते हैं मेंडर्स। तो उन शेप में से कुछ रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, मेन रिवर से अपने आप को अलग कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट, गॉर्ज ए नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड गॉर्ज एंड ए स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट। यानी गॉर्ज क्या होता है, एक नैरो वैली होती है, वैली मीन्स घाटी, जिसमें क्या होता है हिल्स और माउंटेन्स, इसमें क्या होते हैं हिल्स और माउंटेन्स के बीच में से निकलने वाला जो एरिया है, ओके, नैरो वैलीज होती हैं। और इनमें क्या होते हैं रॉकी, जो ये क्या चट्टाने के बीच में से जो रिवर्स निकलती हैं और रिवर्स उनके बीच में से फ्लो करती है, उस वाले जो पार्ट को बोलते हैं गार्ड्स। ए डीप नैरो ओपनिंग फॉर्म्ड बाय द रिवर इन द अपर कोर्स, यानी कि जिसके ओरिजिन पॉइंट से, यानी कि अपर कोर्स से जो रिवर्स क्या करती हैं, एक वैली बनाती हैं, एक डीप नैरो एरिया बनाती हुई क्या जब करती हैं, माउंटेन्स को क्रॉस करके नॉर्दर्न प्लेन में एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं गार्ज। एंड द डेल्टा, इट इज़ ए ट्राइंगुलर शेप पीस ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए रिवर। डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगल शेप्ड होता है, जिसमें क्या होता है जब रिवर्स हैं वो जब आपके अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज होने से पहले क्या एक शेप बनाते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। और जहाँ पे डेल्टा बनते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर आर द अपोजिट ऑफ हिमालय रिवर सच एज these rivers originate in the peninsular plate. You know, some river originate from Western Ghat and some rivers originate from Central Highland. Central Highland such as Narmada and Tapi, and the Western Ghat rivers such as Godavari, Krishna and Kaveri, Tapi. Okay, and these rivers are seasonal and depends on rainfall. Peninsular rivers are सीजनल, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या करती हैं सीजनल, यानी कि बारिश आने पे ही इनमें क्या रहता है, पानी रहता है, और ये मोस्टली क्या है रेनफॉल पे डिपेंड रहती हैं। लेकिन हिमालय रिवर्स में हमेशा पानी रहता है, क्योंकि माउंटेन्स पे बर्फ़ होने की वजह से वो उसमें रिवर्स में हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है। एंड दीज रिवर आर शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू द हिमालय रिवर। दीज रिवर आर शॉर्टर एंड दे कवर short distance as compared to the Himalaya river because these river are flow from east to west and west to east. पेनिनसुलर रिवर है जो आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होते हैं या सेंट्रल हाईलैंड से, तो वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, तो इनकी जो रिवर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। एंड दे डू नॉट फॉर्म मेंडर्स, वो एक तो ये जो प्लेन एरिया में क्या करती हैं, मूव करती हैं, फ्लो करती हैं, तो मेंडर्स भी नहीं बनाती। मेंडर्स कब बनते हैं, जब माउंटेन से जब कोई रिवर क्या करती है, क्रॉस करती हुई नीचे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं मेंडर्स। लेकिन इसमें क्या है, ये जो एरिया है वो क्या प्लेन एरिया है और उसमें नॉर्थ टू साउथ, उसमें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, इसलिए कोई मेंडर्स नहीं बनते। एंड द सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड द फ्लो टूवर्ड वेस्ट। सम रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड मीन्स मध्य प्रदेश ओरिजिन फ्रॉम टू रिवर्स नर्मदा एंड तापी एंड फ्लो टूवर्ड वेस्ट की तरफ फ्लो करती है नर्मदा एंड तापी, और अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं। दीज रिवर कैन नॉट कैरी सैंड एंड सिल्ट, और ये रिवर्स अपने साथ ज़्यादा सैंड और सिल्ट भी फ्लो करके नहीं लेके आती, क्योंकि ना ही कोई एडिजन एक्टिविटी होती हैं, ना ही बीच में कोई माउंटेन्स होते हैं, तो इनके साथ ज़्यादा कोई सैंड और सिल्ट भी फ्लो नहीं होता। एंड द कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा एंड तापी आर मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर। वेस्टर्न घाट में आपने देखा हो कि कृष्णा, गोदावरी रिवर्स हैं जो क्या है, पेनिनसुलर रिवर है। एंड मोस्ट ऑफ दीज रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स पेनिनसुलर मीन्स वेस्टर्न घाट में से मोस्टली जो रिवर है वेस्टर्न घाट से निकलती है, कृष्णा, गोदावरी एंड तापी महानदी, एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सो इसमें दीज आर द फीचर्स ऑफ Himalaya river and peninsular river. Himalaya river are perennial and peninsular river are seasonal. Himalaya river cover long distance and they carry huge sand and silt, but the peninsular river cover short distance and they do not carry
carry much sand and silt. So student, okay, these are the drainage system of India. Next, drainage pattern. Drainage pattern drainage pattern means the pattern in which the river flow. मीन्स जिस भी पैटर्न में, जिस भी मेथड से, जिस भी तरीके से जब रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती है, तो वहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाता है, कुछ डिज़ाइन बन जाता है. एंड ड्रेनेज पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, डिपेंड करता है. रिवर्स वैसे ही मूवमेंट करते हैं कि ये जैसे कि एरिया का क्या है, स्लोप है. अगर वो एरिया क्या है, अप है, तो उसी अकॉर्डिंग स्लोप उसका जो रिवर्स फ्लो करेगी. ये डाउन में है तो उसी तरफ फ्लो करेगी. रॉक स्ट्रक्चर, कि वहाँ पे जो रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया, डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न कि वहाँ का स्लोप और रॉक स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर ही हमारे ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं. और ड्रेनेज पैटर्न के फोर टाइप्स हैं. फर्स्ट है डेंट्रिक, सेकेंड ट्रेलिस, थर्ड रेक्टेंगुलर, एंड फोर्थ है रेडियल ड्रेनेज. So now let's start. Firstly we will discuss डेंट्रिक. डेंट्रिक देखिए बेटा, यहाँ पे मेन स्ट्रीम है और यहाँ पे मेन स्ट्रीम है, ये रिवर्स है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. इसमें जो रिवर्स हैं उसके जो है डेंट्रिक जो है उसकी जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं. और इसमें जो मेन रिवर के साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर के साथ जो बहती हैं, ऐसे लगता है जैसे क्या है, ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. ओके, तो इस वाले जो पैटर्न को हम बोलते हैं डेंट्रिक ड्रेनेज. जब रिवर्स क्या करती हैं, अलग अलग पैटर्न में क्या करती हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है. और ये हार्ड रॉक तो एक ही उसमें रहती हैं, फ्लो करती हैं. लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है, यानी कि जो रॉक्स क्या होती हैं, पानी की वजह से क्या होती हैं, ढल जाती हैं, यानी पानी ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से उनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे क्या है, ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, यानी रिवर की जैसे कि ब्रांचेस की समान उनकी क्या होती है, शेप बन जाती है. उसको बोलते हैं डेंट्रिक ड्रेनेज. फर्स्ट, द डेंट्रिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप ऑफ टेरेन. यानी कि जैसे वहाँ का टेरेन, यानी कि जैसे ज़मीन का जो भी स्लोप होगा ना, तो रिवर्स उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, फ्लो करती है. एंड द स्ट्रीम विद इज ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल द ब्रांच. और जो उसकी जो स्ट्रीम है, यानी जो रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसे लगता है जैसे ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. ऐसे लगता है कि जैसे पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं, तो वैसे ही ऐसे लगता है डेंट्रिक पैटर्न में, जहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, उसको बोलते हैं डेंट्रिक पैटर्न. एंड नेक्स्ट, ट्रेलिस मीन्स ए रिवर ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज. आपको पता है रिवर्स हैं, उसके साथ केवल एक ही रिवर नहीं होती, उसके साथ अलग अलग रिवर्स होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं. जैसे कि इंडस के साथ है आपकी चंबल, रावी, सतलुज. ओके, जैसे गंगा की भी है. तो सभी जो मेन रिवर है उनकी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं. और ये ट्रिब्यूटरी एट राइट एंगल डेवलप्ड ए ट्रेलिस पैटर्न. और ये आपस में राइट एंगल के उसमें क्या होती है, जुड़ी होती हैं आपस में, जैसे ऐसे जुड़ी होती हैं जैसे कि राइट एंगल बने होते हैं. ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिट पैरेलल टू ईच अदर. और इसमें ये ड्रेनेज पैटर्न वहीं बनता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट जो रिवर्स हैं, जो हार्ड और सॉफ्ट जो रॉक्स हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती हैं. तो वहाँ पे जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं ट्रेलिस. देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जो हैं, इसमें जो हैं ये जो रॉक्स हैं, ये वाली जो रॉक्स हैं, ये क्या हैं, आपकी कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं. और इसमें कुछ हार्ड हैं और कुछ सॉफ्ट हैं. जो हार्ड रॉक्स हैं उन पे उनको क्या है, रिवर्स क्या करते, क्रॉस नहीं कर पाती. और जो हार्ड रॉक्स है इसमें देखिए एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, रेक्टेंगुलर, एक दूसरे के जैसे क्या है, ये इसे बनाती हैं जैसे राइट एंगल्स बना रही हैं. देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ये राइट एंगल्स बनाती हुई क्या कर रही है, फ्लो कर रही हैं. तो इस वाले पैटर्न को बोला जाता है ट्रेलिस पैटर्न. और इसमें जो है, इसमें जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक हैं पैरेलल टू ईच अदर, मोस्टली इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं. तो इनको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज. एंड रेडियल पैटर्न ड्रेनेज, द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर. इसमें जो स्ट्रीम्स हैं, यानी जो रिवर्स हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. कि एक सेंट्रल पीक से अलग अलग, जैसे क्या होता है ना, बीच में एक चोटी होती है, सेंट्रल पीक होता है, उससे जो रिवर है सारी क्या अलग अलग एरिया में फ्लो करती हैं, उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न ड्रेनेज. इसका मेन जो है इस सेंट्रल पीक, यहाँ सेंट्रल पीक से सारी रिवर्स क्या करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको बनाते हैं रेडियल पैटर्न ड्रेनेज.
देखिए जैसे यहाँ से रिवर, जो मेन रिवर है यहाँ से, और उसकी ट्यूबिटीज़ हैं वो देखिए कैसे फ्लो कर रही हैं। तो ये सेंट्रल पीक है, यानी डॉम से, यानी ऊंचाई वाले एरिया से जब भी क्या करती हैं आपकी फ्लो करती हैं, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज। ये देखिए सेंट्रल पीक है और इस वाले एरिया से बहुत सारे ट्यूबिटीज़ का ड्रेनेज कर रही हैं, तो इस वाले पैटर्न से बनता है रेडियल ड्रेनेज। एंड रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, A rectangular drainage pattern of drainage develops on a strongly joined rocky terrain। जब टेरेन यानी कि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, जो एरिया है उसमें क्या है, रॉकी, यानी जो आपकी जो रॉक्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, वो इस तरह जुड़ी हुई हैं जैसे उनमें ऐसा लगता है कि शेप जो है रेक्टेंगुलर की शेप बनी हुई है। इसमें रॉक्स के बीच में क्या स्पेस ना होने की वजह से बिल्कुल ये आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जो रिवर का जो सिस्टम बनता है ड्रेनेज, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। देखिए कैसे, ये देखिए बिल्कुल जैसे यहाँ पे हैं, ये वाला जो शेप है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। ये देखिए रिवर्स हैं, अभी यहाँ जो रिवर्स हैं ये फ्लो कर रही हैं आपस में, जो ये यहाँ पे जो हैं इनको कहीं बाहर निकलने की क्या होते हैं, कोई भी स्पेस नहीं होता। तो यहाँ जो रिवर्स हैं ये जो फ्लो करती हैं ये हैं, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो रिवर फ्लो कर रही हैं, यहाँ स्ट्रीम है, ये क्या बन जाती हैं, इनमें ये जो है रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है, देखिए रेक्टेंगुलर। ओके, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। Okay student, so these are 4 types of drainage pattern, and student today your homework is what is drainage basin. Question number 2, which river has the largest river basin in India? And question number 3, how dendritic pattern is formed by the river? And question number 4, explain any 3 features of peninsular river. And question number 5, write any 3 features of Himalaya river. And question number 6, name the 2 main groups into which the river system of India are classified. And student, all question done in your fair note. Thank you.